अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी डिस्कशन बजटिंग के पास पेपर क्वेश्चंस पे जारी थी और उसमें कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किया था। आज हम इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करेंगे और फिर हमारी कुछ डिस्कशन मज़ीद रहती है बजटिंग पे भी थ्योरेटिकल एंगल से, प्राइमरली थ्योरेटिकल, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी ज़रूर है उसमें, लेकिन प्राइमरली थ्योरेटिकल डिस्कशन ही है, उस पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे आज और मे भी शायद मंडे का थोड़ा सा टाइम लेके इसको चैप्टर को ख़त्म करें और मंडे से इंशाअल्लाह हम नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे होंगे, फाइनेंस पोर्शन का लास्ट चैप्टर। तो कल की डिस्कशन से कोई सवाल किसी बच्चे के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 कैश बजटिंग का ही एक सवाल, आखिरी सवाल हमारी क्लास के एजेंडे का। स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन 3 है ये जनाब, और इसकी रिक्वायरमेंट है ये फुल क्वेश्चन 20 मार्क्स का मैक्सिमम जो मार्क्स आ सकते हैं हमारे पेपर में। प्रिपेयर कैश बजट फॉर द 6 months एंडिंग 31 December 2021, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज कैश बजट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मतलब एक कॉलम में आपको 6 मंथ का बजट बनाना है, उसका ब्रेकअप देने की मंथली ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, एलिमेंट्स लिमिटेड is in the process of launching a newly developed product, Lotus. Manufacturing facility has been commissioned and production would commence from 1st July. In this respect, cash budget for the 6 month ending 31st December 2021 is under preparation and following information has been gathered. So cash budget बनाना है, information जो दी गई है हमें वो क्या है? At 100% capacity utilization, the facility Lotus annual production is 800,000. Considering market demand, EL plans to operate the plant for 60% capacity in the first quarter ending 30 September 2021 and at 75% capacity in the subsequent quarters. So हमें quarterly capacity utilization बता दी गई है. Lotus cost per unit is estimated as under: direct material 1.5 kg at 360 per kg inclusive of normal loss. इसका मतलब ये ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ इनपुट है. कॉस्ट पर यूनिट में हमें पता है, हम ग्रॉस क्वांटिटी ही लेते हैं अपनी डिस्कशन में. ये ऑलरेडी इसने बता दिया, ये ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ इनपुट है. डायरेक्ट लेबर 1.2 hours at 240 per hour. Factory overhead variable 180 per direct labor hour, or operating expenses variable 94 per unit produced. Direct material would be added at the start of the manufacturing process. Normal loss is estimated at 10% of the input. 60% of the loss would result in solid waste, which would be sold as for cash at 500 per kg. Sale proceeds from waste would be credited to cost of production. ये नॉर्मल ट्रीटमेंट होती है सेल प्रोसीड ऑफ वेस्ट की, जो कि हमने कैप 3 में प्रोसेस कॉस्टिंग में भी सीखा था. नॉर्मल लॉस की सेल्स प्रोसीड जो होती थी वो हम प्रोसेस कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को क्रेडिट कर रहे होते, तो ये भी वही बात कर रहा है. डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री would be maintained for average 15 days. Raw material inventory consumption of the current quarter based on budgeted production, whereas finished goods inventory would be maintained for average 30 days. Budgeted production of the next quarter, ये उसने थोड़ा सा कैश डाला. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री करंट क्वार्टर की कंजम्पशन पे है और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नेक्स्ट क्वार्टर की प्रोडक्शन पे है. Fixed factory overheads of 1 million, including depreciation of 450,000, would be incurred every month. In addition to above, following expenses would be incurred. Lotus is an outcome of research
carried out by Humble Research Institute. As per agreement, a fixed amount of 2.8 million is payable to the HRI on the date of commencement of production of Lotus. In addition, a royalty of 40 per unit sold would also be payable. Administrative expenses would amount to 1.2 million per month. This amount would be inclusive of allocated head office salaries of to 50,000. A sales promotion campaign has been planned from 1st July at a cost of 6 million. In this respect, 20% of the cost would be paid on in June, and the remaining amount would be payable in two equal installments on 1st October and 15 January. Unless otherwise specified, payments would be made as detailed under direct material purchases within 50 days, direct labor 25th of each month, and all other expenses within 30 days. Lotus would be sold at a contribution margin of 20% and 25% for cash and credit sales. Cash sales is estimated to be 25% of credit sales. Credit customers are expected to pay within 40 days of sales. लीजिए जनाब पढ़ लीजिए सवाल को एक तो फिर हमें कैश अदर इन्फॉर्मेशन भी रह गई EL uses marginal costing and follows FIFO method of valuation of inventory. यहाँ पे इस जुमले की सिग्निफिकेंस कोई है नहीं, क्यों भला? बिकॉज देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक. 1 जुलाई को तो कारोबार शुरू हो रहा है, पहले 6 महीने का तो हम बजट बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फाइफो की कोई इम्प्लीकेशन नहीं है. फाइफो की इम्प्लीकेशन तो वहाँ आती है जहाँ पे आपके पास ओपनिंग स्टॉक होता है, तो यहाँ पे कोई ओपनिंग स्टॉक आपके पास नहीं है. All transactions would occur evenly throughout the period unless otherwise specified. Consider 30 days in a month. ठीक है जी, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ना भी लिखा हो तो हम ये एज्यूम करेंगे 30 days a month. एक सवाल फिर पढ़ लीजिए. कैश बजट बनाना है, कैश बजट पे आपने ज़हन में रखना है. हमें कैश सेल्स से रिकवरी चाहिए, क्या क्रेडिट सेल्स से रिसीट्स चाहिए, हमें स्क्रैप सेल्स से रिसीट्स चाहिए, हमें फिर पेमेंट चाहिए मटेरियल की, लेबर की, एक्सपेंसेस की. ये सारी आइटम्स हमने वन बाय वन वर्कआउट करने हैं और फिर हमारा कैश बजट कंप्लीट हो जाएगा. एक सवाल पढ़ लीजिए, फिर हम काम शुरू करते हैं.
ये मोटी मोटी रिसीट्स और पेमेंट्स की जो आइटम जो मुझे क्वेश्चन को स्कैन करते हुए नजर आई, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, वेस्ट सेल्स, ये रिसीट्स की आइटम्स हैं। और पेमेंट साइड पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वेरिएबल, रिसर्च कॉस्ट, रॉयल्टी, एडमिन एक्सपेंस एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। ये पूरा सवाल हम स्कैन करें तो मुझे लगा शायद मोर और लेस यही चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे अकाउंट फॉर करनी है। तो हम वन बाय वन वर्किंग स्टार्ट करते हैं जी। और सबसे पहले हम सेल्स पे काम करना शुरू करेंगे। कैश सेल्स आपको पता है जी, यूनिट्स इनटू प्राइस, वहाँ से हमें कैश सेल मिलनी है। तो उसके लिए अब हमारे पास सेल्स के यूनिट्स भी अवेलेबल नहीं है और हमारे पास प्राइस भी अवेलेबल नहीं, दोनों के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। सेल्स के यूनिट्स कहाँ से आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो गाइडलाइन अवेलेबल है, बोर्ड पे देखिएगा सेल्स के नंबर कहाँ से आएंगे। यहाँ पे हमें प्रोडक्शन बताई गई है, क्वार्टरली हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे। क्वार्टरली प्रोडक्शन मेजर करें तो 6 महीने की प्रोडक्शन मिल जाएगी हमें, क्योंकि हमें याद रखेगा एक कॉलम बनाने हैं 6 महीने का कैश बजट में, तो हमें 6 महीने की सेल चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन का डाटा क्वार्टरली गिवन है, तो हम 2 क्वार्टर की प्रोडक्शन निकालेंगे, ऐड करेंगे, 6 महीने की प्रोडक्शन हो जाएगी। बिजनेस नया है तो ओपनिंग स्टॉक तो ज़ीरो है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कहानी कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर आपके पास फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस ओपनिंग स्टॉक, दिस इज इक्वल टू सेल, नहीं सॉरी, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज सेल्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज सेल्स। यहां से आपकी सेल्स की फिगर निकलेगी, और ये हम क्वार्टरली वर्किंग बनाएंगे, 2 क्वार्टर की वर्किंग बनाएंगे और दोनों को सम कर लेंगे। तो मैं वर्किंग 1 यहाँ पे सेल्स यूनिट्स की करता हूँ, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू सेल्स। ये एक वर्किंग हमारी बनेगी जिसमें हम क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 दोनों ले लेंगे। पहले क्वार्टर 1 की बात करें तो क्वार्टर 1 का ओपनिंग स्टॉक 0 है, और क्वार्टर 1 की बात करें तो क्वार्टर 1 की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है भाई, 60%। सालाना कैपेसिटी आपकी 8 लाख है, तो हम तो क्वार्टरली काम कर रहे हैं ना, तो क्वार्टरली कैपेसिटी कर लो तकसीम 4, क्वार्टरली कैपेसिटी होगी। पहले क्वार्टर में 60% है और ऑनवर्ड उसने कहा 75% चलने वाली है, तो क्वार्टर 1 में कितनी प्रोडक्शन होनी है, 1,20,000, और क्वार्टर 2 में 150,000। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में उसने क्या कहा, क्लोजिंग स्टॉक आपका होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें बताया गया है कि जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा वुड बी मेंटेन्ड एवरेज 30 डेज बजटेड प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। मतलब क्वार्टर 1 में बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक होगा नेक्स्ट क्वार्टर के 30 डेज के बराबर। तो ये तो क्वार्टर है, क्वार्टर में 90 डेज है, इंटू 30 कर दो, कितना जी, 50,000। और आगे भी यही रहने वाला है, क्योंकि उसने कहा उसके बाद प्रोडक्शन इसी लेवल पे मेंटेन होगी, अगले क्वार्टर में भी यही है, आगे भी यही है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पे भी 50,000 ही रहने वाला है। लीजिए जी, ये क्लोजिंग यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा, यहाँ की सेल्स 70,000, यहाँ की सेल्स 150,000, ये आ गई सेल्स। अच्छा, हमें सिर्फ सेल नहीं चाहिए, हमें तो सेल्स का कैश और क्रेडिट में ब्रेकअप ही चाहिए, और कैश और क्रेडिट में ब्रेकअप के लिए इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो जनाब पड़ी है यहाँ पे। हमें कहा गया है कैश सेल्स इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, मतलब क्रेडिट सेल्स 100 हैं तो कैश सेल्स 25 है, क्योंकि कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 25% है ना, जिस बेस पर परसेंटेज लगती है वो बेस 100 होती है। क्रेडिट सेल्स 100 हैं, कैश सेल्स 25 हैं, इसका मतलब टोटल सेल्स कितनी हुई, 125। ठीक है जी। तो जनाब इस सेल्स का, ये जो हमारी टोटल सेल्स हैं,
इसका हम ब्रेकअप बना लेते हैं, कैश और क्रेडिट। इफ दिस इज वैल्यू ए, तो ए डिवाइडेड विद 125 इंटू 25 ये कैश सेल्स होगी, और ए डिवाइड विद 125 इंटू 100 ये क्रेडिट सेल्स होगी आपकी जी। कैश सेल्स क्वार्टर 1 14,000, कैश सेल्स क्वार्टर 2 30,000, क्रेडिट सेल्स क्वार्टर 1 लीजिए जी, हमारे पास सेल्स के नंबर आ गए। मेरे पास कैश सेल्स 6 महीने की बनेगी 14,000 जमा 30,000 वर्किंग 1 से, और मेरे पास क्रेडिट सेल्स बनेगी 56,000 प्लस 120,000। सॉरी, क्रेडिट सेल तो यहाँ नहीं लेनी, कैश सेल्स इक्वल टू रिसीट्स। क्रेडिट सेल का तो हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ से हमें रिसीट्स निकलेंगी। अब दूसरी वैल्यू क्या मुझे चाहिए, प्राइस, सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस के बारे में हमें बताया गया है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताया गया है। उसे कहा जी कंपनी कैश सेल 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे है, क्रेडिट सेल 25% मार्जिन पे है। प्राइस मुझे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का डाटा तो अवेलेबल है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट का डाटा अवेलेबल हो, मार्जिन अवेलेबल हो, तो कैश प्राइस क्रेडिट प्राइस दोनों निकल आएंगे ना। तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेजर करनी है। लीजिए जी, यहाँ से आइए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना शुरू करते हैं। वर्किंग 2 हम बनाते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए। जहां से हम प्राइस पे पहुंचेंगे। डायरेक्ट मटेरियल 1.5 इंटू 360 ग्रॉस है ना, तो ग्रॉस पे कॉस्ट मेजर की जाती है। कितनी जी, 540। डायरेक्ट लेबर 1.2 इंटू 240 288। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल ये है जी 180 पर डायरेक्ट लेबर आवर, 1.2 इंटू 180 216। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये भी वेरिएबल है, कितने हैं जी, 94। इसके अलावा एक वेरिएबल कॉस्ट मुझे कहीं और मिली, नजर आई थी नीचे, दैट वाज रॉयल्टी। बिल्कुल ठीक है जी, एक वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र और नीचे कहीं और था, दैट इज़ रॉयल्टी। ये जनाब हमें बताई गई है, 40 रुपीज़ पर यूनिट हमें पे करनी है यूनिट सोल्ड के ऊपर। तो लीजिए जनाब, ये हम रॉयल्टी यहाँ पे ले लेते हैं, एक और वेरिएबल कॉस्ट। और एक एडजस्टमेंट हमारी जो रह गई कॉस्ट की कैलकुलेशन में, वो है वेस्ट की सेल वैल्यू। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द वेस्ट वुड बी क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से कम करनी है, तो सेल प्रोसीड्स ऑफ द वेस्ट यहाँ से लेस होगी, लेस सेल प्रोसीड्स ऑफ वेस्ट। और सेल प्रोसीड ऑफ वेस्ट के बारे में कहा गया है, हमारी वेस्ट होती कितनी है, इनपुट का 10%। एक यूनिट में से इतना वेस्ट निकलेगा, लेकिन ये सारा नहीं बिकेगा, इसका बिकेगा 60% और वो बिकेगा 500 पर केजी के हिसाब से। तो जनाब हमारी सेल प्रोसीड फ्रॉम वेस्ट इज 45 पर यूनिट। लीजिए जी, लेस कीजिए, यहां से आपको वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी 1133, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। इसकी बेसिस पे हम कैश प्राइस ले सकते हैं, क्रेडिट प्राइस ले सकते हैं। कैश प्राइस 20% मार्जिन पे है, इसका मतलब कैश प्राइस के लिए ये जो कॉस्ट है ये 80% है, 1133 ओवर 80 इंटू 100। और क्रेडिट प्राइस का मार्जिन 75 है, इसका मतलब 1133 ओवर 75 इंटू 100। ठीक है जी, लीजिए जी कैश प्राइस
1416 क्रेडिट प्राइस। लीजिए जी, ये वर्किंग 2 हमारी कंप्लीट हुई। कैश प्राइस और क्रेडिट प्राइस आ गई हमारे पास। हमें मार्जिन का डाटा दे दिया गया और हमें वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दे दी गई। तो वेरिएबल कॉस्ट इंफॉर्मेशन और मार्जिन इंफॉर्मेशन को लेके हमने प्राइस पर यूनिट डिटरमिन कर ली फॉर बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? मैथमेटिक्स पे आपकी ग्रिप बेटा बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको एम्फेसाइज किया गया था डिसीजन मेकिंग में अच्छा करना है, तो आपको मैथमेटिक्स लॉजिकल मैथ पे ग्रिप परसेंटेज प्रोपोर्शन से डील करना अच्छा आना चाहिए। यही बातें यहाँ पे हैं कि आपको रिलेशनशिप परसेंटेजेस प्रोपोर्शंस पे जितनी अच्छी ग्रिप होगी, जितना मैथमेटिक्स आपका अच्छा होगा, उतना ही बजटिंग के क्वेश्चन आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि बजटिंग के क्वेश्चन में सारा आता ही मैथ्स पे है, बाकी कुछ इसमें असूल तो होते ही नहीं है। बेसिक से फॉर्मेट्स हैं जो आपने बहुत पुराने बचपन में सीखे हुए, रिपीटेडली सीखे हुए, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ मैथ्स का है कि किस तरह क्वेश्चन को पढ़ के रिक्वायर्ड वैल्यूज को आप असर्टेन करते हैं। लीजिए जी, हमारे पास कैश की प्राइस आ गई 1416 वर्किंग 2 से, तो यहां से हमें रेवेन्यू मिल जाता। कैश सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू इक्वल टू रिसीट कितनी है जी? 6230 62.304 मिलियन। हाँ, लीजिए जी, ये मेरे पास कैश रिसीट्स की फिगर आ गई। वर्किंग ऑन से मैंने वॉल्यूम उठाया, वर्किंग 2 से मैंने प्राइस उठाई। कैश रिसीट्स, कैश सेल्स के अगेंस्ट रिसीट्स। क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट रिसीट लेने के लिए मैं वर्किंग 3 बना लेता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे डेटर्स का अकाउंट बनाना है। हम यहां पे वर्किंग 3 में डेटर्स, ट्रेड डेटर्स का अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पे 0 है क्योंकि कंपनी नई है। यहां पे क्रेडिट सेल्स डेबिट होनी है, इधर बैलेंस कैरी डाउन होने हैं, और यहां पे कैश रिसीट्स आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्रेडिट सेल्स के यूनिट्स आ रहे हैं जनाब ये 56,000 प्लस 120,000, और क्रेडिट सेल्स की प्राइस आ रही है ये 1511। यहां से क्रेडिट सेल्स का रेवेन्यू मिलता है 265,36,000 265 मिलियन। यह आपके आगे क्रेडिट सेल। फिर हमें डेटर्स के बारे में पॉलिसी बताई गई है। डेटर्स से हमारा कलेक्शन पीरियड कितना है? क्रेडिट कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू पे विद इन 40 डेज ऑफ सेल्स। अच्छा, अब यहां पे हमारे जो दिसंबर के हमें क्रेडिटर चाहिए, तो दिसंबर के क्रेडिटर हमारे इस क्वार्टर से बचे होंगे, ऐसा ही है। हमें इस क्वार्टर से हमें दिसंबर के क्रेडिटर डेटर बचे होंगे। तो 120,000 ये जो हमारी सेल्स हैं ये है 90 दिन की, और हमारे डेटर्स 40 दिन की सेल के बराबर हैं, ऐसा ही है जी। लास्ट क्वार्टर में 120,000 बेचा, 90 दिन की सेल इस प्राइस पे बेचा, 40 दिन की सेल कितनी बनती है? 8058 667। लीजिए जी, अब आप यहां से बैलेंसिंग फिगर कैश 185,349,333। ये जी हमारी कैश रिसीट्स अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स आ गई 185,349,333। ओपनिंग यहाँ पे एक वाहिद गलती हो सकती थी, हम ये डेटर 6 महीने की सेल पे मैयर कर लेते, वो गलत हो जाना था, क्योंकि क्वार्टरली सेल अलहदा अलहदा है और हमारे डेटर क्वार्टर 2 की सेल में से बचे हैं। ठीक है,
हमारी 40 दिन की सेल्स हमारी पेंडिंग है, वो क्वार्टर 2 में से पेंडिंग है, क्योंकि 90 डेज़ की सेल्स हमारी क्वार्टर 2 में हुई भी है, इसमें से 40 दिन पेंडिंग है। तो हमने इसकी 40 दिन पे डेटर्स का बैलेंस वर्कआउट किया, ये कैश रिसीट्स की फिगर आ गई। जी, एनी क्वेश्चन? वेस्ट की सेल, हमें पता है कि वेस्ट एक यूनिट बनाने पे 45 रुपए का वेस्ट जनरेट हो रहा है। एक यूनिट बनाने पे 45 रुपए का वेस्ट जनरेट हो रहा है। हम 6 महीने में कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 6 महीने के यूनिट्स हमने कितने बनाए हैं? तो इंटू 45 सेल ऑफ वेस्ट आ गया। और सेल ऑफ वेस्ट के बारे में कोई क्रेडिट का जिक्र नहीं किया गया, ये उधार पे बेचा जा रहा है, ये नहीं बताया गया। तो हम अज्यूम करेंगे जैसे ही प्रोड्यूस हुआ वैसे बिक गया, ठीक है। तो हमारी वेस्ट की सेल बनेगी यहाँ पे 120,000 प्लस 150,000 इंटू 45, 1215 टेट्रा 0। लीजिए जी, ये हमारी वेस्ट की सेल्स भी रिकॉर्ड हो गई। रसीट्स की साइड हमारी तीनों आइटम्स कंप्लीट हो गई हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, वेस्ट सेल्स। तीनों से जो रिसीट्स हैं वो हमने ले ली। हमने कैश सेल तो कैश सेल्स हैं, सेल्स इक्वल टू रिसीट्स, और वेस्ट सेल को भी हमने सेल्स इक्वल टू रिसीट्स लिया, क्योंकि वेस्ट सेल की टर्म्स नहीं बताई गई, तो हमने अज्यूम किया ये कैश पे है। और क्रेडिट सेल्स को हमने डेटर का अकाउंट बना के वहां से उनकी रिसीट्स डिटरमिन की। अच्छा, अब इसमें कुछ खर्चे ज़्यादा सिंपल हैं, मैं उनको पहले ट्रीट कर दूं। जैसे सेल्स प्रमोशन आसान है, सेल्स प्रमोशन का ये नोट आ रहा है जी, उसने कहा जी टोटल आपने इस प्रोडक्ट के लिए 6 मिलियन का सेल्स प्रमोशन का खर्चा करना है, जिसमें से 20% निकल जाएगा कब? जून में। तो वो तुम्हारा बजट पीरियड ही नहीं है ना, हम तो बजट बना रहे हैं जुलाई से दिसंबर तक का, तो उसको तो छोड़ दो। उसने कहा जब बाकी जो 80% बचेगा वो कब जाएगा? 2 किस्तों में, मतलब 40-40 की 2 किस्तें होंगी, एक 1 अक्टूबर को, एक 15 जनवरी को। तो हमारे पीरियड में कितनी किस्तें आ रही हैं? एक। हमारे पीरियड में सेल्स प्रमोशन की मद में 6 मिलियन का 40% सिर्फ पे होगा, 2.4 मिलियन। सेल्स प्रमोशन में सिर्फ 2.4 मिलियन हमने पे करना है हमारे पीरियड में। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको यहां पे ले लो। पहले रॉयल्टी यूनिट सोल्ड के ऊपर पे होनी है और 40 रुपीज पर यूनिट पे होनी है। तो जनाब यूनिट सोल्ड हमारे पास ये आ रहे हैं, यूनिट सोल्ड हमारे पे होने हैं, यूनिट सोल्ड है हमारे 70 प्लस 150, 70,000 प्लस 150,000 इंटू 40। लीजिए जी, ये रॉयल्टी आ गई, कितना जी? 8.8 मिलियन, ये हमारी रॉयल्टी की पेमेंट आ गई। और रिसर्च कॉस्ट भी हमें जैसे ही प्रोडक्शन शुरू होगी पे करनी है, 2.8 मिलियन। यहाँ पे ख्याल कीजिएगा, ये कैश बजट मान रहा है, ये डिसीजन मेकिंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग के लिहाज से तो इरेलीवेंट है ना, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग से कंफ्यूज नहीं कर जाना इसको। इन्वेस्टर अप्रेजल होती तो ये हमारी इरेलीवेंट थी, हमने इसको नहीं लेना था, बट ये इन्वेस्टर अप्रेजल नहीं कर रहे हैं हम, ये कैश बजट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जेब से ये पैसा जाना है 2.8 मिलियन। ये टॉपिक्स के नेचर फ़र्क ज़हन में रखिएगा। इन्वेस्टर अप्रेजल के लिहाज से ये इरेलीवेंट कॉस्ट है, क्योंकि प्रोडक्शन शुरू करो या ना करो ये पे करनी है, लेकिन पे तो करनी है ना, तो कैश बजट बन रहा है, पे करेंगे आप जी। और कौन सी वर्किंग आसान है? एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल अदर एक्सपेंसेस विल बी पेड इन 30 डेज। मटीरियल लेबर छोड़ दो, इसके अलावा सारे खर्चे 30 डेज डिले से पे होने हैं। बाकी खर्चे हैं कौन से? बाकी खर्चे जो बचते हैं वो तो, अच्छा ये और ये 3 खर्चे बचते हैं।
जो कि वो कह रहा है कि ये अब पे होने हैं आपके 1 महीने डिले के साथ। हमने ये दो छोड़ दिए, बाकी सारे डाल दिए, इनकी कहानी रह गई है। चलें पहले एडमिन एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। एडमिन एक्सपेंस कितना है हमारा? 12 लाख, लेकिन 2,50,000 का इस प्रोजेक्ट से लेना देना, वो तो एलोकेशन है ना, वो पे नहीं करना हमने, वो सिर्फ एलोकेशन है। तो रेलिवेंट क्या हुआ? 12,50,000 माइनस 2,50,000। एडमिन एक्सपेंस में रेलिवेंट अमाउंट है 12 लाख माइनस 2,50,000, और 1 महीने डिले से पे होना है। इसका मतलब 5 महीने की कॉस्ट पे होगी 6 महीने में, ऐसा ही है। 1 महीने डिले का मतलब इस 6 महीने में 5 महीने की कॉस्ट पे होगी। कितनी बनी? 4.75 मिलियन। ये कहानी भी खत्म हुई। अच्छा जी, अब आ जाइए फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल पे। वेरिएबल ओवरहेड्स हमने पे करने हैं यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर, एम आई राइट? ये यूनिट प्रोड्यूस पे होते हैं, क्योंकि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, ये यूनिट प्रोड्यूस पे होंगे। और हमें कहा गया है इसमें डिले आना है कितने दिन का? 30 दिन का। तो जैसे देखिएगा, इसका मतलब Q1 का खर्चा सारा पे हो जाएगा। इसमें से ये कितने दिन का खर्चा है? 90 दिन का। कितने दिन का पे होगा? 60 दिन का। अब ये प्रेजेंटेशन आप अगर चाहो तो एक्सपेंसेस पेबल के अकाउंट से भी कर सकते हो, चाहो तो स्मार्टली भी हैंडल कर सकते हो, जैसे मैं आपके सामने बात करने लगा था। लेकिन चले मैं फिलहाल एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट से ले आता हूँ इसको। मैं फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल एक्सपेंस को वर्किंग नंबर 3 तक पहुँचे थे, वर्किंग नंबर 4 से फैक्ट्री ओवरहेड पेबल अकाउंट से ट्रीट कर लेता हूँ। वर्किंग 4 FH पेएबल, बैलेंस ब्रॉट डाउन 0 है। एक्सपेंस फॉर द पीरियड क्रेडिट होगा। कैश पेमेंट यहाँ पे डेबिट होनी है, जो कि बैलेंसिंग फिगर निकलेगी यहाँ से बैलेंस कैरी डाउन होने के बाद। एक्सपेंस हमारा बनता है यहाँ पे प्रोडक्शन के ऊपर। 2,70,000 की प्रोडक्शन है जी हमारी, और खर्चा हमारा कितने हैं? वेरिएबल 216 पर यूनिट। तो लीजिए जी, यहां से बताइए टोटल खर्चा कितना हुआ? जी बेटा, 58.32 मिलियन। ये हमारा एक्सपेंस हो गया। पेबल हमारा सिर्फ इस पे बेस करेगा, 1,50,000 इंटू 216, ये 90 दिन का खर्चा है। और पेबल खड़ा है 30 दिन का, 30 दिन लेट पेमेंट होती है। तो कितना बना? 21.6 मिलियन। लीजिए जी, बैलेंसिंग फिगर ले लीजिए पेमेंट की। 10.8 मिलियन। कैश पेमेंट 4752 टेट्रा 0। लीजिए जी, ये कैश पेमेंट अगेंस्ट फैक्ट्री ओवरहेड 4752 टेट्रा 0। इसी पैटर्न पे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेबल का अकाउंट बनाएंगे। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको पता है ना, वो यूनिट प्रोड्यूस पे बेस नहीं करते, वो यूनिट्स सेल पे बेस करते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेबल का अकाउंट बना है। वो आपका खर्चा है 94 पर यूनिट, लेकिन ये खर्चा होता है यूनिट सोल्ड के ऊपर। बनाइए ज़रा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस की पेमेंट बताइए कितनी होगी 6 महीने की। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे आपने पेमेंट डिटरमिन करनी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेबल लेजर बना के वहां से डिटरमिन कीजिए वैल्यू। बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे भी जीरो है। टोटल एक्सपेंस यूनिट सोल्ड पे लेंगे और एक्सपेंस पेबल कैरी डाउन जो आपने करने हैं वो Q2 की सेल्स के ऊपर वर्कआउट करेंगे, वो भी 30 डेज का पेबल है। हाँ जी, क्या आ रहा है भाई? 15। आर यू श्योर? दिखाओ जरा। आपका 15 आया। 15.98 ये क्या है? पेमेंट। पेमेंट। ये कैसे निकाली? एक्सपेंस कैलकुलेट करके दिखाओ। किसको किससे ज़रूरत दे रहे हो? टोटल सेल्स टोटल सेल्स कितनी है? 220,000 ठीक है, इंटू 94 इंटू 94 बिल्कुल ठीक हो गया, डन हो गया। 20.68 मिलियन एक्सपेंस है, डन हो गया। पेबल कैसे निकाला? $150,000 इंटू 94 इंटू 30/90 ठीक हो गया, 4.7 15.98 मिलियन ठीक लग रहा है। यहाँ पे इसने क्या किया हुआ? ओहो माय मिस्टेक, यूनिट प्रोड्यूस पे लिया हुआ है उसने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट प्रोड्यूस। माय मिस्टेक जी, हमें मेरी गलती। उसने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है यूनिट प्रोड्यूस पे लेने हैं। मैं यूनिट सोल्ड पे आपसे डिटरमिन करवा लिया, यूनिट प्रोड्यूस पे। नॉर्मली ये अब देखिए, ये हमसे एग्जामिनर गलती करवाता है क्योंकि हम हमेशा से यही पढ़ते आए हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यूनिट सोल्ड पे होते हैं और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस यूनिट प्रोड्यूस पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने बस ट्रैप करने के लिए उसने इसको लिख दिया यूनिट प्रोड्यूस। इसीलिए शायद आपको कहा जाता है कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन को जब आपने 2-3 दफ़ा पढ़ा होगा तो ये पॉइंट आपको क्लिक हो जाता है। पहली दफ़ा रीडिंग में जैसे मैंने एक दफ़ा पढ़ा, मुझे ये क्लिक नहीं हुआ था। मेरे दिन में ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का देन में होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये तो सोल्ड पे होते हैं, छोड़ दो। लेकिन जब दूसरी तीसरी बार पढ़ते हैं तो क्लिक हो जाता है कि नहीं यार कोई गड़बड़ हो गई, यहाँ पे उसने गलत लिख दिया, जैसे होता है वैसे नहीं लिखा। रिवर्क कर लीजिए बेटा इसको यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर। 20.68 मिलियन। अच्छा यहाँ पे बेटा एक बात और देखिए, अल्टरनेटिव वर्किंग जो एग्जामिनर ने प्रेजेंट की गई है इसको उस हिसाब से भी देखिए ज़रा। मैं आपको यही वर्किंग अल्टरनेटिव बताऊं, अगर मैंने तो कहा ना लेजर अकाउंट से बनाओ, तो हमने लेजर अकाउंट से बना ली, वो हमें आती है। लेकिन अब आप चूंकि मैच्योर भी हो रहे हो, यू नीड टू लर्न टू परफॉर्म एफिशिएंटली एंड स्मार्टली। अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो 94 पर यूनिट है। Q1 का पूरा पे हो गया, इसमें से 30 डेज का पेंडिंग है। ये पूरा पे हो गया, इसका मतलब ये 90 में से 60 डेज का पे हुआ है, ऐसा ही है। तो आप ये वर्किंग ऐसे भी यहां पे शो कर सकते थे कि भाई मेरा जो Q1 है वो 120 यूनिट्स पे पूरा पे होना है इंटू 94, और जो मेरा Q2 है वो 150,000 इंटू 94 डिवाइडेड विद 90 इंटू 60, ये मेरा ऐसे पे होना है। तो ये पेमेंट पहले क्वार्टर की पूरी आ गई, दूसरे क्वार्टर की 60 डेज की पेमेंट ले लिया आपने, तो टोटल पेमेंट आ गई। बजाय से 30 डेज का पेबल माइनस करो, आप यहां से 60 डेज का एक्सपेंस ले लो, एक ही बात है ना। तो ये वर्किंग आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, बजाय लेजर अकाउंट बनाओ। यही वर्किंग इधर भी रिपीट हो सकती थी, यहां पे भी ओवरहेड में भी रिपीट हो सकती थी। सो आपको स्मार्टली प्रेजेंट करना भी सीखना है।
कि हमें क्वार्टर 1 की पेमेंट पूरी करनी है और क्वार्टर 2 में हमने 60 दिन की पेमेंट करनी है। 30 डेज डिले है ना, कैसा मतलब आखिरी 30 दिन की पेमेंट नहीं करनी, 60 दिन की पेमेंट करनी है। तो पूरे क्वार्टर की पेमेंंट, 60 दिन की पेमेंट, टोटल पेमेंट। हम इसको ऐसे भी वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सपेंस पेबल से भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। हमें दोनों अंदाज आने चाहिए, दोनों पे हमारी ग्रिप रहनी चाहिए, ताकि हमारा थोड़ा मेंटल मैथ बेहतर होता जाता है। एक कैलकुलेशन को अगर डिफरेंट अंदाज से करने की आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका जहन शार्प होता है। एक ही कैलकुलेशन को दाएं बाएं घुमा के परफॉर्म करते हो तो इसका जहन आपका शार्प होता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी कॉन्सेप्ट की बेहतर होती है, एंड इट हेल्प्स इन आवर सब्जेक्ट, इट हेल्प्स। हमारा बच्चा चाहता है दिमाग को कम से कम इस्तेमाल करना, बस एक तरीका सीख लिया, रट लो इसको। तो ये अप्रोच नेगेटिव अप्रोच है हमारे सब्जेक्ट के लिए। चीज एक मेथड को सीख कर रट लेना और उस पर अपने आप को इत्तेफाक कर लेना, दाएं बाएं नजर ना घुमाना, ये अप्रोच नेगेटिव रहती है, आपके दिमाग को ग्रो करने से रोकती है। तो हमने दिमाग को ग्रो कराना है, हमने दिमाग को इस्तेमाल, और ग्रो कराने का तरीका है उसको इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल करने के लिए सोचो अल्टरनेटिव कैलकुलेशंस, अल्टरनेटिव मेथड्स, अल्टरनेटिव अप्रोचेस के बारे में सोचो। जी भाई हो गया। अब आगे जी लेबर की कहानी। लेबर की कहानी सिंपल है। उसने कहा हर महीने की 25 तारीख को आप सैलरी पे कर देते हो। इसका मतलब जिस महीने का खर्चा है उसी महीने पे हो जाता है। 25 तारीख को पे कर दे, महीना तो 30 को खत्म होता है, आप 25 को पे कर देते हो महीने की सैलरी। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। जितने यूनिट्स बनाए 1,20,000 जमा 1,50,000, उन सब की लेबर कॉस्ट जिस महीने का खर्चा उसी महीने पे हो रही है, और कॉस्ट है 288। बोलो 77.76 मिलियन। लीजिए जी, ये भी होगी कहानी। अब आखिरी मटेरियल की कहानी रह गई है। मटेरियल को मैं एंड में इसलिए लाया कि यूजुअली मटेरियल के अगेंस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट होती है। मल्टीपल एडजस्टमेंट मटेरियल में क्या आती हैं? सबसे पहले मटेरियल की कंजम्पशन निकलती है। कंजम्पशन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डालते हो तो परचेज आती है। फिर उसमें ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट डालते हो तो आपकी पेमेंट आती है। और एक एडजस्टमेंट यहां पे भी मिस हो रही है, FIFO वाली, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है ना, नहीं तो वो तीसरी एडजस्टमेंट वो भी आ जाती है। तो कंजम्पशन में एक एडजस्टमेंट आएगी आपकी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की, एडजस्टमेंट नंबर 1, और फिर दूसरी एडजस्टमेंट यहां पे आएगी आपकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स की, जिससे पेमेंट निकलेगी। तीसरी एडजस्टमेंट जहां पे मिसिंग है ओपनिंग स्टॉक ना होने की वजह से, FIFO वाली, जो हमने पिछले कई सवालों में डाली है। FIFO और प्राइस इंक्रीज आती है ना, उसकी एडजस्टमेंट मिसिंग है यहाँ पे। तो बहरहाल हमें 2 एडजस्टमेंट यहाँ पे पास करनी है। मैं ये डाटा मैं अरेज करूँगा, क्योंकि मैं प्रोडक्शन का डाटा लेके क्वार्टरली एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री हमें प्रोडक्शन क्वार्टरली हो रही है, तो कंजम्पशन भी क्वार्टरली आएगी और इन्वेंट्री भी क्वार्टरली में लेकर चलनी पड़ेगी। तो मैं ये वेरिएबल कॉस्ट का डाटा यहाँ से अरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अब रॉ मटेरियल के लिए वर्किंग बनाता हूँ। रॉ मटेरियल की वर्किंग हमारी से वर्किंग नंबर 5, 6 जो भी बनती है, वर्किंग 6 का नंबर मैंने दे दिया जिसको। तो सबसे पहले हम लाएंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन। कंजम्पशन में ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमारी आ जाएगी रॉ मटेरियल परचेजेस। परचेजेस की फिगर आ जाएगी, तो फिर हम इसकी पेमेंट्स भी इस्टेब्लिश कर लेंगे। पहले परचेजेस तक पहुंच जाएं, फिर हम पेमेंट भी बना लेते हैं। कंजम्पशन, कंजम्पशन हमारी रहेगी, प्रोडक्शन की फिगर हमारे पास है, से दिस इज वैल्यू P, तो P इंटू 1.5 kg पर यूनिट, ऐसा ही है। तो कंजम्पशन मेरे पास केजीज में आ गई, 120 इंटू 1.5 180,000 और 225,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, $15 days of consumption of current quarter based on budgeted production.
15 डेज ऑफ कंजम्पशन, अगर ये आपकी वैल्यू सी आ रही है तो सी डिवाइडेड विद 90 इंटू 15, जी ये कितना बना 30,000, और ये कितना बना 37,500। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ज़ीरो है और ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का ओपनिंग बन जाता है। लीजिए जी, परचेज 2,10,000 kg और ये कितनी बनी 232,500, ये परचेजेज आ गई। परचेज है, इसकी कॉस्ट भी मुझे पता है और परचेज का पेमेंट पैटर्न भी मुझे पता है। परचेज की कॉस्ट मेरी है रॉ मटेरियल की जनाब 360 रुपये पर केजी, मैंने केजी निकाल लिया ना, 360 पर केजी के हिसाब से मैं ख़रीदता हूँ, और पेमेंट टर्म्स है मेरी 50 डेज की। परचेजेज मेरी टोटल 6 महीने की यही है, और पेबल मेरा स्टैंड करेगा 50 डेज का यहां से, ऐसा ही है। तो मैं अपने पेबल का अगर लेजर बना लूं, मैं यहां पे अपने पेबल का एक लेजर बना लेता हूं छोटा सा, ट्रेड पेबल, या ट्रेड क्रेडिटर्स कह लीजिए। ब्रॉड डाउन बैलेंस इसका ज़ीरो है, यहाँ पे परचेजेज आती हैं और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, तो ये आपकी कैश पेमेंट्स बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। परचेजेज हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया, 2,10,000 जमा 2,32,500 मल्टीप्लाइड विद 360, 159.3 मिलियन, ये परचेजेज आ गई। क्रेडिटर्स 50 दिन की, लेकिन वो बेस करेंगी सिर्फ Q2 से, 232,500 इंटू 360 बटा 90 इंटू 50, जी 46.5 मिलियन। लीजिए जी, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ गई पेमेंट की 2.8 मिलियन, ये हमारी कैश पेमेंट है, ये हमारा ट्रेड पेबल का अकाउंट कंप्लीट हो गया। सो ओपनिंग बैलेंस ज़ीरो है। परचेजेज हमने ये डिटर्मिन की थी, यहाँ से उठा ली टोटल 360 पे, और पेबल हमारा सिर्फ Q2 का 50 डेज का स्टैंड करेगा। बैलेंसिंग फिगर मटेरियल की पेमेंट 112.8। लीजिए जी, कैश, जी बेटा फिक्स्ड एफओएच का भी जिक्र था, कहाँ पे था मैं भूल गया, कौन सी अमाउंट रहेगी जी। मैंने सारी फिगर्स यहाँ से देखते जाते हैं, हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, हमने ये भी ले लिया, ठीक है जी। इन्वेंट्री का बैलेंस भी कर लिया, फैक्ट्री ओवरहेड ये कर लिया ना, सॉरी ये नहीं किया हमने, फिक्स्ड ओवरहेड, अच्छा हमने ये किया, बिल्कुल ठीक है जी। फिक्स्ड ओवरहेड हमारा रह गया, बिल्कुल ठीक है जी। फिक्स्ड ओवरहेड हमारी एक आइटम यहाँ पे मिस हो गई, एफओएच फिक्स्ड, और उसके बारे में उसने कहा है ये कितना है 1 मिलियन, लेकिन इसमें डेप्रीसिएशन है ना, तो डेप्रीसिएशन तो नॉन कैश है, तो 1 मिलियन माइनस नॉन कैश, और इसका भी 1 महीना पे नहीं होगा, 5 महीने की पेमेंट आएगी। कितनी आई जी 2.75 मिलियन। लीजिए जी, दैट्स इट। यहाँ से हम वेरीफाई कर लेते हैं, तमाम फिगर्स हमने केटर कर ली हैं जी, कोई अमाउंट हमसे ओमिट तो नहीं हो गई। अब हमने कैश सेल ले ली, हमने क्रेडिट सेल ले ली, वेस्ट सेल ले ली, मटेरियल ले लिया, लेबर ले ली, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल ले लिया, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स रह गया था वो भी ले लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लिया, रॉयल्टी ले ली, फिक्स्ड पेमेंट ले ली, रॉयल्टी के अगेंस्ट सैलरीज ले ली, और सेल प्रमोशन ले लिया। एवरीथिंग इज़ डन।
सवाए एक जगह यहाँ पे शायद मुझे राउंडिंग ऑफ फ़र्क नज़र आ रहा है, इसके अलावा शायद कोई फ़र्क भी नहीं है। ठीक है, इस फिगर में हमारा शायद राउंडिंग ऑफ का फ़र्क कोई आया है, ये कुछ 100 का, इसके अलावा बाकी सब हमारी फिगर्स भी मैच कर रही हैं जी। एनी क्वेश्चन? ये 20 नंबर का कैश बजट का सवाल था एग्ज़ाम में। और अगेन जब अगर सवाल, वैसे तो ये सवाल मैनेजेबल था, बड़ा डूएबल था, लेकिन आपको ज़हन में रखने हैं कि 20 मिनट का सवाल एग्ज़ाम में 36-38 मिनट आपके पास हैं। जो मार्क्स मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो आप कीजिए, आगे चलिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर कोई मुश्किल भी होती है तो आपको 15, 14, 15, 16 नंबर लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो 14-15 नंबर अगर आप ले पा रहे हैं इस तरह के सवाल में तो इट्स एक्सीलेंट स्कोर। अगर 4-5 नंबर पे आप फंस रहे हैं, किसी एडजस्टमेंट में आपको नहीं पिक हो पा रहा, तो उस पर 15 मिनट ज़ाया नहीं कर देने। आपको 70-75% नंबर लेके खुश होना चाहिए और आगे मूव करना चाहिए, अगले पेपर्स की, अगले क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए। हाँ, अगर टाइम है तो ज़रूर सोचिए, लेकिन यूजुअली टाइम होता नहीं है। हमारे बच्चे टाइम ज़ाया कर देते हैं जिसकी वजह से सवाल मिस हो जाता है, तो वो गलती नहीं करनी। ये सवाल एंड में कर रहे हो तो जितना मर्जी टाइम लगाओ, जितना बचा सारा लगा दो। लेकिन अगर बीच में कर रहे हो तो कैलकुलेटेड टाइम करके जो एडजस्टमेंट कर सकते करो, और टाइम पूरा होने के बाद बाकी एडजस्टमेंट को छोड़ के आगे चले जाओ, क्योंकि ये तो सवाल ऐसा है जिसमें अजम्पशन लेके कंप्लीट करने वाली कहानी भी कम ही आती है। अगर अजम्पशन लेके कंप्लीट करने वाली बात है तो अजम्पशन लेके सवाल कंप्लीट करो। लेकिन अपेरेंटली यहाँ पे सवाए जब आपने सेल्स की फिगर निकाल ली है, प्रोडक्शन की फिगर निकाल ली, तो बाकी सारी फिगर्स इंडिपेंडेंट हो जाती हैं जी। एनी क्वेश्चन? कोई बात बेटा समझ नहीं आई, पूछे इस सवाल में, इस कैलकुलेशन में। ये काफ़ी कंप्रिहेंसिव सवाल था और मैंने कोशिश की कि तमाम डिस्कशन, तमाम वर्किंग को डिटेल में हम डिस्कस करें, और जहाँ पे एक से ज़्यादा एंगल्स की ज़रूरत थी मैंने वो भी आपसे शेयर किया, ताकि आपको भी आदत पड़े चीज़ों को और अंदाज से देखने की। अच्छा, एग्जामिनर ने ना अपनी वर्किंग ऐसे ही प्रेजेंट की हुई है सारी, एग्जामिनर ने लेजर अकाउंट नहीं बनाया हुआ। ये भी एक वजह थी, मैंने आपके सामने रख दी वर्किंग, ताकि आप उसकी वर्किंग देख के कंफ्यूज ना हो। उसने ये वर्किंग ऐसे प्रेजेंट की हुई है, हमने ये लेजर अकाउंट से निकाली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है, आपको समझ जिसकी आती है, जो आपको एफिशिएंट लगता है वो कीजिए जी। बेटा एनी क्वेश्चन? ये सारी वर्किंग आप देख रहे हैं, एग्जामिनर ने ऐसे ही 60 डेज, ये लेजर अकाउंट नहीं बनाए हुए, सारी वर्किंग उसने ऐसे प्रेजेंट की। इवन मटेरियल की वर्किंग भी उसने ऐसे प्रेजेंट की हुई है। लेजर अकाउंट्स नहीं, ना डेटर में भी लेजर अकाउंट नहीं है, हमने सारे लेजर अकाउंट से निकाले थे। उसने सबको पीरियड एडजस्टमेंट यहीं पे डाल दी है, पेबल रिसीबल की एडजस्टमेंट इधर ही डाल दी है। दिस इज़ एन अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन एंड ऑनेस्टली दिस इज स्मार्ट प्रेजेंटेशन। अगर आप समझ पाओ, सीख पाओ, ग्रिप कर पाओ तो वो अच्छी है। टाइम सेव होता है वहाँ से। टी अकाउंट बनाने में इट टेक्स टाइम। ये एडजस्टमेंट, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, कुछ नहीं लिखना, कैलकुलेशन दिमाग में अगर है तो ये फैक्टर लिखना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेशन ओके है। यही मैं आपको समझाता था ना कि ये जगह छोड़ी है तो उधर वर्किंग कर दिया करो। कॉलम को एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले जाओ, एक एक लाइन छोड़ के लिखे होंगे तो यहाँ पे वर्किंग की काफ़ी जगह बच जाती है। स्मार्ट वर्किंग यहीं पे कर पाएंगे। मैं वर्किंग 1 वर्किंग 2 लिख के आगे जाने की जरूरत नहीं है। टी अकाउंट बनाना ना, वर्किंग 1 वर्किंग 2 लिख के आगे जाओगे, वहाँ पे ज़्यादा लाइनें खींचोगे, बनाओगे, टाइम लगेगा। यहाँ पे आपने एक लाइन में फैक्टर लिखना है, काम हो जाता है। सो दिस इज एफिशिएंट प्रेजेंटेशन। अगर इसको ग्रिप कर सको तो अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको टी अकाउंट से दे दिया है, बाकी आगे आसानी के लिए इसको फॉलो कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह हम मिलेंगे मंडे को। तो हम बजटिंग में हमारी थोड़ी सी बात रह गई है, थोड़ी सी डिस्कशन है, उसको करके इंशाअल्लाह हम फिर मूव कर जाएंगे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के एरिया पे। मुझे लगता है मंडे से ही इंशाअल्लाह हम शुरू कर रहे होंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।